In chapter 2nd of class 11th, Olympic Value Education, the Olympic Games, a premier international sporting event, embody the spirit of unity, friendship, and fair play. The Olympic movement, founded by Pierre de Coubertin in 1896, is guided by fundamental principles and values. So, today we are going to explore about Olympic values such as friendship, respect, and excellence. Namaskar friends, myself Ajay Kumar. Welcome you all on our YouTube channel Let's Learn Physical. Now, come to start the class directly without wasting time. You just remain till the last. You must get something special. And one thing more, still you don't subscribe this channel, so please subscribe this channel. Okay? See, the first topic is Olympic values. What is the Olympic values? Let's see. Through a combination of sport, culture, and education, the Olympic movement uses sports as a tool to promote the fundamental ethical and principles and support harmonious development for all. What is this? It is saying that Olympic value is what? It is a combination of sport, culture, and education. Okay, the Olympic movement uses sports as a tool to promote fundamental ethical principles. What is saying? This Olympic movement, which started in 1896, that Olympic movement uses sports, स्पोर्ट्स को यूज करता है एज ए टूल टू प्रमोट व्हाट फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स. एथिकल यू नो, एथिकल मीन्स मोरल. मोरल मीन्स नैतिक जो सिद्धांत होते हैं उनकी बात कर रहा है. ठीक है. एंड सपोर्ट द हारमोनियस डेवलपमेंट फॉर ऑल. हारमोनियस यू नो, हारमोनियन मीन्स तालमेल बैठा के करना या सुव्यवस्थित तरीके से सभी के लिए जो विकास होने चाहिए वो सभी के विकास करने के लिए क्या करता है? सपोर्ट करता है. नाउ कम टू नेक्स्ट. द पैरालंपिक मूवमेंट प्रमोट्स यूनिवर्सल वैल्यूज. हियर इज पैरालंपिक. Olympic is so many types in which one is Paralympic, and in Paralympics those participants can participate whose have some impairment in their body. Either some limbs are not there in the current body or something some disability like that. Now that is Paralympic. So Olympic movement promote Paralympic movements also. In that, which type of values? Universal values it promoting. What the universal values? Courage, determination, inspiration, and equality. These are what? These are the universal values. Okay, universal means such values which are needed to promote at the international level, either in each country. Okay, so let's next see the three important core values of Olympics central to Olympic Games are. And here are three important core values which are the we can say center of the Olympic Games. What are those? First, excellence. The second, respect, and third one is what? Friendship. Okay, now let's see. These core values are considered important in life to make it worth living. Okay, if these three core values are in your life, then your life surely become worth living. Means एक बेहतर लाइफ जी रहे हैं आप. ठीक है. Helps in decision making on moral terms, and these are make a person able to make a decision. In detail, these Olympic values are as follows. Now we will see in a detail each and every one. Let's see. First of all, friendship. What is friendship? Friendship means dosti. Everyone
नो what दोस्ती हैं. So friendship, just let's see. Friendship is at the core of the Olympic movement. फ्रेंडशिप क्या है? ओलंपिक मूवमेंट का कोर है. ठीक है, मीन्स हर्ट है फ्रेंडशिप. ओके, नाउ फ्रेंडशिप ब्रिंग्स ओलंपिक एंड पैरालंपिक एथलीट्स and people from around the world together in sport, play and competition. These things bring the two different types of players. Olympic means those players having each and every limbs of their body, means they are fit in all directions, and Paralympic those are unfit in all directions. Either they loses their hand or legs or mind hindrance and like that. So friendship brings the togetherness in between Paralympic athletes and Olympic athletes, as well as it attract the people from all the world to play the sports and compete. To complete competition means to fight, play the games in a good or healthy environment. Now it breaks down barriers, encouraging individuals to look beyond the differences such as gender, ability, culture, races, religion. Okay, what it is saying, friendship is just saying that it break down the barriers. Barrier, you know, ऑब्स्टिकल्स जो हमारे लाइफ में ब्रेकर बन के खड़े हों, वो तो ये इंकरेज करता है एक एक इंडिविजुअल को. ठीक, फॉर व्हाट? टू कम फॉरवर्ड फॉर लिविंग द डिफरेंसेस ऑफ जेंडर डिफरेंसेस छोड़ना है. एबिलिटी, इफ वी आर लिविंग इन सच अ डाउन सिचुएशन, सो इन द other mindset is that is they are not able or something, so that ability you have to live it. Culture, race and religion, हमें इन सभी बेसिस पे जो भी डिफरेंसेस होते हैं, इन सभी डिफरेंसेस को छोड़कर आगे आके हमें क्या करना है, इन सारे बैरियर्स को तोड़ के आगे आके प्ले करना है और एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप करना है. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट. बाय वेलकमिंग एवरीवन्स डिफरेंसेस वी कैन स्टेबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. और जितने भी स्टेबल से आइदर जेंडर, कल्चर, रेस, रिलीजन, इन सब को छोड़कर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे बीच में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स in between us. Okay, such type of bonds friendship welcoming. Now friendship can be the basis of connections within the community for working together and supporting each other. और जो फ्रेंडशिप है, इसी कनेक्शन के बिहार पे जो कम्युनिटी में वर्क करने वाले लोग हैं एक साथ, उनको एक साथ ला के सपोर्ट करता है. और ऐसे बेसिस पे जो कम्युनिटी का कनेक्शन है उसको स्ट्रांग बनाने का काम ही है फ्रेंडशिप. Okay, now come to next. Respect. What is the respect? Respect, you know, respect means आदर, सम्मान. रेस्पेक्ट मीन्स यही होता है. तो रेस्पेक्ट में क्या करना है, हमें एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना है, आदर सम्मान करना है. लेट्स सी. रेस्पेक्ट लाइज एट द हार्ट ऑफ ओलंपिज्म. जो ओलंपिक मोमेंट है, इफ इट इज़ अ ओलंपिक मोमेंट एंड रेस्पेक्ट इज लाइज इन द सेंटर हार्ट ऑफ दैट मोमेंट. रेस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ एंड योर बॉडी. और इसमें क्या होता है कि हमें अपने आप का भी है रेस्पेक्ट होना चाहिए, हमारे अपने बॉडी का भी क्या होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए. फॉर अदर पीपल, दूसरे लोगों के लिए. फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो नियम कानून बने हैं उनके लिए भी. फॉर स्पोर्ट्स एंड फॉर इन्वायरमेंट. और यही नहीं, हमारे जो रेस्पेक्ट है हमारे स्पोर्ट्स के लिए भी होना चाहिए, और जो हमारे इन्वायरमेंट है जो हमें हेल्दी रखती है, जो हमें हेल्दी व्हाट वी कैन से हेल्दी एयर प्रोवाइड करता है, हेल्दी लिविंग प्रोवाइड करता है, सब कुछ प्रोवाइड करता हो, ऐसे चीज़ों को लिए हमें क्या करना है, रेस्पेक्ट रखना है. लेट्स सी. इन फैक्ट रेस्पेक्ट इज़ द की टू स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप. और फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना पड़ेगा. सो रेस्पेक्ट इज़ द की टू मेक अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, फेयर प्ले एंड स्पोर्ट्समैनशिप.
और एक बेहतर खेल जिसमें कि कोई पार्शियलिटी ना हो, ऐसा खेल, ऐसा प्ले करना हो, तो उसमें रेस्पेक्ट एक दूसरे के लिए होना चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप, और जो खेल के प्रति जो हमारा रुझान होता है, झुकाव होता है, सम्मान होता है, आदर होता है, वो इंसान हमें बनना है, वो चीज़ हमें अकेला खिलाना है, वो कंसेप्ट डेवलप करना है। ओके, नाउ अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ आवर एक्शंस, हैं, हमारे एक्शंस का इम्पैक्ट हमें समझना होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लेइंग अ पार्टिसिपेटिव रोल इन आवर कम्युनिटी। और जो भी हम खेल खेल रहे हैं, जो भी हम कोई अपना रोल अदा कर रहे हैं, उस सब के एक एक्शन होता है, और एक्शन का जो इम्पैक्ट है उसको हमें समझना होता है। ठीक है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम कुछ भी बोल देते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बट कुछ लोग होते हैं कि जो बोलते हैं उसको थिंक करके बोलते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसलिए उसको संभाल के बोलते, कोई भी बात बोलते हैं। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट, व्हाट द रेस्पेक्ट इंक्लूड। अब रेस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको एक दो देख लेते हैं। लिसनिंग टू एंड आस्किंग फॉर द आइडियाज, और आइडिया के लिए हमें क्या करना चाहिए, दूसरे की बात सुननी भी चाहिए, अपनी बात रखनी भी चाहिए। ओपिनियंस एंड बिलीव्स ऑफ एवरी वन, आइदर बॉयज आइदर गर्ल्स, पीपुल लिविंग विद डिसेबिलिटी, आइदर द पीपुल लिविंग विद डिसेबिलिटी, सभी की ओपिनियंस को, बिलीव्स को सुनना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्या होता है, ये रिस्पेक्ट दूसरे के लिए होता है। इफ़ वी आर आस्किंग एंड लिसनिंग, जैसे सपोज मैं, दो स्टूडेंट हैं ए एंड बी, मैं इनको क्या चांस देता हूँ कि आप क्या करो, बोलो, अपने आइडियाज़ दो, अपने ओपिनियंस दो, अपने विचार दो, अपने विश्वास दो, क्या सोचते हो, क्या आपके इस बिंदु को, इस पॉइंट को लेके आपके माइंड में चल रहा है, आप क्या ओपिनियन देना चाहते हैं, तो उसको मैं सुनूं, रेस्पेक्टफुली सुनूं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज व्हाट, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। ठीक, ना कम टू नेक्स्ट, हेल्पिंग अदर्स टू फील सेफ फ्रॉम वायलेंस। वायलेंस जस्ट 2 अक्टूबर गुजरा है। ठीक है, 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, नॉन वायलेंस डे, हाँ, अहिंसा दिवस के रूप में, हैं, स्वच्छता दिवस के रूप में। सो वायलेंस क्या कह रहा है, हम इस तरह से माहौल बना के रखें, इन्वायरमेंट बना के रखें, वी जस्ट क्रिएट सच एन इन्वायरमेंट वेयर everyone feel safe, हैं, from what, violence, teasing, bullying, and verbal, physical, and mental or sexual violence, हैं. So in these violences everyone feel safe, हैं, हम ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट करें, दैट इज नोन एज रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। ठीक है, देखते हैं आगे। Taking care of ourselves by choosing to eat healthy food while getting enough rest and exercise, with being confident in ourselves to share and defend our ideas and opinions। और इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने बिलीव्स को क्या देखते हैं अभी एक बार और। टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स बाय चूजिंग टू ईट हेल्दी फूड्स, और हमें क्या करना है, हमें अपने खाने में चूजी होना पड़ेगा कि वो खाना है जो हमें हेल्दी बना सके। ठीक है, हमारे बॉडी का केयर कर सके। ठीक है, और उस हेल्दी फूड को लेने के बाद, इनटेक करने के बाद, हमें एक रेस्ट चाहिए, फिर जब ज़रूरत पड़े तो उसके लिए एक्सरसाइज प्रॉपर करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस से अपनी हम बातों को शेयर कर पाते हैं, अपने आइडियाज़ या ओपिनियंस को डिफेंड भी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट। नाउ कम टू लास्ट ओलंपिक वैल्यूज, excellence। excellence, do you know excellence? No? So excellence means what we can say, excellence
सी एक्सीलेंस मीन्स बेस्ट करना, अच्छा करना है। तो लेट्स सी, एक्सीलेंस मीन्स डूइंग द बेस्ट वी कैन ऑन द फील्ड ऑफ प्ले और इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। और एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है कि जो हम करते हैं उसको हम फील्ड में चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ में बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर पाएँ, दैट इज़ एक्सीलेंस। ओके, इम्पोर्टेंट थिंग इज़ नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जब भी खेलें हम जीतें, बट ये ज़रूरी है कि हमें टेक पार्ट मीन्स हमें उसमें हिस्सा लेना चाहिए, हमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वी शुड इंजॉय द हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी विल एंड माइंड। और हमारी जो बॉडी है उसमें विल है, माइंड है और बॉडी, इन तीनों का एक बेहतर कॉम्बिनेशन को हमें इंजॉय करना चाहिए। ओके, इट इज़ अबाउट हैविंग एन एम्बिशन इन लाइफ एंड थ्रू डिटर्मिनेशन एफर्ट एंड perseverance reaching that goal. Okay, so what is saying, हमें क्या करना है, it is about having an ambition in life. ambition, you know, ambition means क्या होता है, ambition means क्या होता है, उमंग होता है, आपके अंदर की जो अभिलाषाएं हैं वो होती हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी लाइफ की जो एम्बिशंस हैं, अपनी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं जो हैं, ठीक है, लक्ष्य जो है, उसके लिए हमें क्या करना है, एफर्ट डालना है। एंड थ्रू डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यू नो, दृढ़ संकल्प, ठीक है, दृढ़ता जो आपके एफर्ट के पीछे है। एफर्ट मीन्स प्रयास एंड प्रिजरेंस रीचिंग दैट गोल। व्हाट, परसिवरेंस रीचिंग दैट गोल। और आपका जो गोल है उस गोल के प्रति आपका क्या प्रयत्न कितना है, लगन कितना है, वो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। दैट इज एक्सीलेंस। एक्सीलेंस इज नॉट ओनली ऑन द स्पोर्टिंग फील्ड, और एक्सीलेंस सिर्फ स्पोर्टिंग फील्ड पे नहीं होता, इट इज़ आल्सो इन द क्लासरूम। इट इज़ वेयर ऑल चिल्ड्रन हैव राइट टू एन एजुकेशन। और ये क्या है, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस वो है जहाँ की हर बच्चे को एजुकेशन लेने की क्या है, राइट्स है। एंड आल्सो है by helping children pursue excellence by chasing their dreams। और वो भी एक एक्सीलेंस है जिसमें बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, उनके लक्ष्य को पीछा करने के लिए, उनको हमें चेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। दैट इज आल्सो एन एक्सीलेंस। ओके, थैंक यू फॉर joining me on this class through recorded mode।